أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لسان القرآن کا کورس ہم کر رہے ہیں. آج ہمارا ہے سبق نمبر 22. آج کا ٹاپک ہے جملہ جملہ اسمیہ میں حصر تاکید پیدا کرنا. جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے عموماً جملے کے شروع میں لفظ انا کا اضافہ کیا جاتا ہے. جملہ اسمیہ پر جب انا داخل ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ میں ایک اعرابی تبدیلی واقع ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کا مبتدا حالت نصب میں چلا جاتا ہے. پہلے تو جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہوتا ہے وہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے نا. اس کی جو اعراب ہوتا ہے رفعی حالت میں، یعنی کہ جو مبتدا ہوتا ہے رفعی حالت میں ہوتا ہے. لیکن جب انا داخل ہوتا ہے تو جو مبتدا ہے وہ نصبی حالت میں چلا جاتا ہے. اور اس کو جو مبتدا ہے پھر ہم اس کو مبتدا نہیں کہتے، اس کو ہم کہتے ہیں انا کا اسم، انا کا اسم. ٹھیک ہے. جیسے یہاں مثال دی ہوئی ہے کہ زید نیک ہے، تو اس کی عربی ہم کریں گے زید صالح. تو جب ہم نے اس میں حصر پیدا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، انا داخل کریں گے، یعنی شروع میں انا لگائیں گے. تو انا لگانے سے جو زیدن ہے وہ رفعی حالت سے نصبی حالت میں آ جائے گا. وہ ہو جائے گا انا زیدن صالحن. خبر جو ہے وہ رفعی حالت میں ہی رہے گی. ٹھیک ہے. یعنی خبر کا اعراب نہیں بدلے گا، صرف مبتدا جو ہے اس کا اعراب بدلے گا. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ پر انا کے داخل ہونے کے بعد جملہ اسمیہ کا مبتدا انا کا اسم اور جو خبر ہے وہ انا کی خبر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہیں گے، زیدن انا کا اسم ہے اور صالح انا کی خبر ہے. پھر ہم مبتدا اور خبر نہیں کہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے شروع میں لام جو ہے نا، لام مفتوحہ کا استعمال کریں. جیسے ہم کہیں گے کہ واقعی، جیسے ترجمہ ہم کرتے ہیں واقعی، یقیناً، بے شک. جیسے ہم نے کرنا ہے کہ ہمارے پاس جملہ ہے زید صالح، کہ زید جو ہے نیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم ایسے کریں گے، انا پہلے لگایا تو اس کا جو ہوا مبتدا ہمارا نصبی حالت میں چلا گیا، خبر جو ہے مرفوع ہی رہی. دوسرا اس کا جو طریقہ ہے اس کو حصر پیدا کرنے کا یا تاکید پیدا کرنے کا، تو وہ ہم لام مفتوحہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی زبر والا لام. تو اس کو ہم کیسے کریں گے، لا زید صالح. تو جو لا ہے وہ اس کا اثر نہیں ہوگا، اعراب بالکل چینج نہیں ہوگا. ہر اعراب جو ہے مبتدا کا ویسے کا ویسا رہے گا اور خبر کا بھی ویسے ہی رہے گا، اس سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن جب انا داخل ہوگا تو انا سے مبتدا کا اعراب جو ہوگا وہ نصبی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی انا جملوں میں آ کر مبتدا کو نصب کرتا ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے اپنے. مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتا ہے اور خبر بھی انا کی خبر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں باتیں جو ہیں آپ نے یاد رکھنی. یہ ہم جملہ اسمیہ کی بات کر. ٹھیک ہے. یعنی مبتدا نہیں رہتا اور خبر بھی خبر نہیں رہتی، بلکہ انا کی خبر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسم کے منصوب ہونے کی ایک وجہ، یعنی اسم کیوں منصوب ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب انا اسم جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے
तो जो इसम होता है, मुब्तदा होता है, वो नस्बी हालत में चला जाता है। एक ये वजह। अच्छा, अभी तक हमने जो लाम पढ़े हैं, 3 लाम हमने पढ़ लिए। एक तो लाम जो हमने हरूफे तहज्जी पढ़े थे, उसमें लाम हमने पढ़ा था। दूसरा लाम फिर हमने लाम तारीफ पढ़ा, यानी नकरा को मारफा बनाने के लिए अल जो है शुरू में लगाते हैं, या इसम के शुरू में यानी अल लगाते हैं, अलिफ लाम दाखिल करते हैं, तो उस अलिफ लाम को क्या कहते हैं? लाम तारीफ। और एक लाम हमने पढ़ा था लाम जारा। ठीक है। अच्छा, और अब ये चौथा लाम आज हमने पढ़ा है, ये है लाम ताकीद। ये जबर वाला लाम। ठीक है। अच्छा, लाम में जारा के बारे में यह है कि लाम लाम के नीचे जेर होती है, ठीक है ना, लाम जेर ली हाँ वो आता है। लेकिन जब किसी जमायर के साथ लाम आता है तो फिर जबर के साथ लाम आता है, यानी लामे जारा जबर के साथ आता है। ये बात भी आपको याद रखनी। ठीक है। लामे तकीद, इस पर जबर आती है और जुमला इस्मिया के शुरू में आकर जोर पैदा करता है। एराब में कोई तब्दीली नहीं आती। ठीक है जी। ये बातें आपने रखनी है याद। अच्छा, इन्ना का असर देखना है कि इन्ना क्या असर करता है जुमले पे। जुमला है जैसे है हमारे सामने, अल वलदु सालिहुन, तो इसको हमने बनाना है, यानी इन्ना दाखिल करना है इस पे, तो क्या तब्दीली आएगी? इन्ना, जो अल वलदु है वो हो जाएगा अल वलदा सालिहुन। सालिहुन वैसे ही रहेगा। ठीक है। तो इसको हम मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इसे नहीं पढ़ना कि इन्ना अल वाला, तो हमने पढ़ना इन्नल वालदा सालिहुन। ठीक है। अच्छा, इसको फिर मैं लिख के भी बताऊंगी, पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं लिख कर आपको कि तब्दीली कैसे आई। अच्छा, अल वाला, अच्छा तो अगर ये तो एक था ना कि एक लड़का लड़का नेक है, तो दो लड़के नेक हैं, दोनों लड़के नेक हैं, तो हम क्या करेंगे? अल वालदानी सालिहान। तो ये तो हो गया उसका, हमने उसकी अरबी की। अब हमने इसको क्या करना है कि उसमें ताकीद पैदा करनी है। ठीक है ना, कि इन्ना, इन्ना लगाएंगे सबसे पहले, इन्नल वालदैनी। ठीक है, 10वीं हालत में आएगा ना, वालदानी दैनी में बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वालदानी वालदैनी वालदै, तो इन्नल वालदैनी सालिहान। ठीक है। फिर है कि मुसलमान सच्चे हैं, सब मुसलमान सच्चे हैं, इसको कैसे करेंगे? अल मुस्लिमूना सादिकून। ठीक है। फिर इसमें इन्ना लगाएंगे, इन्नल मुस्लिमीना सादिकून। मुस्लिमीना नस्बी हालत है, मुस्लिम मूना की। ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, अल बिंतु सालिहातुन, ये लड़की नेक है। इसको भी हम इन्ना पहले लगाएंगे, इन्नल बिंता सालिहातुन। फिर दो लड़कियां, अल बिंतानी सालिहातान। इन्ना लगाएंगे तो क्या होगा? इन्नल बिनतैनी सालिहातानी। फिर है कि जब इसकी हम जमा करेंगे, बिंतु एक लड़की थी, बिनतानी दो लड़कियां, तो बहुत सारी लड़कियां या सब लड़कियां, अल बिनातु सालिहातुन। इन्ना लगाएंगे तो इन्नल बिनातु बिनाती। अच्छा, अब यहाँ पे बिनाता नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि जो जमा सालम होती है मुअन्नस की, उसमें जो उसकी नस्बी और जरी हालत होती एक ही होती है। ठीक है। तो वो आएगा इन्नल बिनाती स्वालिहातुन। ठीक है। अच्छा, और एक बात ये याद रखनी कि कभी कभी जोर पैदा करने के लिए इन्ना के इन्ना और लाम इकट्ठे भी आ जाते हैं। ठीक है, यानी इन्ना भी जुमले में इस्तेमाल होता है और लाम भी आता है। इसकी मिसालें हम कुरान से देखेंगे। ठीक है, जो जुमला इसमें आके शुरू में इन्ना लाएंगे,
اور खबर के साथ लाम का इस्तेमाल करें। ठीक है, जोर देने के लिए इन्ना, लाम और वाव भी जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। वाव कस्मिया कहते हैं ना, जो जैसे सूरतुल असर में है। सूरतुल असर सर ने भी हमें करवाई इसी में, कि सूरह असर में जोर पैदा करने वाली सारे जो थे ना हरूफ जो बताए गए हैं वो सारे उसमें इस्तेमाल हुए हैं। जैसे वल असरी इन्नल इंसान लफी खुसरी। तो अब पहला जोर क्या है? वाव, वाव कस्मिया है, ये जमाने की कसम। ठीक है, दूसरा जोर कौन सा है? इन्ना। तीसरा जोर ला, लाम जो था हमने पढ़ा ना, लाम तकीद। ठीक है, लामे तकीद जबर के साथ आता है। और चौथा जोर है ये जो है ना, हुसरिन। ये दो यानी इसके साथ तनवीन के साथ आया है। ठीक है, कि जब ज्यादा जोर देना होता है ना कि बहुत बड़ा नुकसान, तो इसम नकरा लाया जाता है। ठीक है, जब अरब ये सर ने यानी ये रूल बताया था, अरब जो इस्तेमाल करते हैं कि जब अरब अल दाखिल नहीं करता, यानी इसम पर दाखिल नहीं अल दाखिल नहीं करता इसम नकरा पर, तो कोई खास बात होती है। ठीक है, यानी ये खबर जो आई लफी खुसरिन, तो खुसरिन जो था ये जो उसके साथ आई है तनवीन के साथ। ठीक है, तो ये क्यों आई है कि इसमें बहुत ज्यादा यानी जोर दिया गया है कि बहुत बड़े नुकसान की बात हुई है। तो ये चौथा जोर है जो इस जुमले में यानी इस आयत में इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अच्छा जी, ये थी हमारा आज का सबक था। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लें पहले, या पहले दूसरा लेसन, क्योंकि पिछली हमारी क्लास नहीं हो सकी थी। तो दोनों एक ही यानी मौजू पे हैं, उसको तो फिर हम इकट्ठी ही उसकी प्रैक्टिस करेंगे एक ही। ठीक है ना, फिर हम बोर्ड पे मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख के उसका करवाऊंगी। तो जो दूसरा हमारा लेसन सबक नंबर था हमारा 23, जुमला इसमें में तकीद, ये वही मौजू चला आ रहा है। तो उसमें भी यही बताया गया है कि जुमला इसमिया में ताकीद पैदा करना, जब हम जुमले में जोर पैदा करना चाहते हैं तो इन्ना और लाम जबर वाला लाम ताकीद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लाम ताकीद का इस्तेमाल कुरान में कम है, इन्ना का इस्तेमाल ज्यादा है। लामे ताकीद कोई एराबी तब्दीली लेकर नहीं आता। इन्ना इसम का एराब तब्दील कर देता है, मुब्तदा को नस्ब कर देता है, और मुब्तदा मुब्तदा नहीं रहता, इसमु इन्ना बन जाता है, और खबर खबरू इन्ना बन जाती है। जुमला इसमिया में इन्ना दाखिल होकर जुमले पर कब्जा कर लेता है, मुब्तदा का एराब तब्दील करके अपना इसम बना लेता है, और खबर को अपनी खबर बना लेता है। ठीक है, तो ये हमारा जो अगला सबक है ना वो भी इसी मौजू पे है। अच्छा, जुमले में डबल जोर पैदा करने के लिए इन्ना और लामे ताकीद दोनों भी इस्तेमाल होते हैं। इन्ना जुमले के शुरू में इस्तेमाल होता है, और लाम आगे चला जाता है, यानी लाम जो होता है वो खबर के साथ फिर इस्तेमाल होता है। मजीद जोर पैदा करने के लिए शुरू में आप कसम भी खा सकते हैं। किसी जुमले में जोर पैदा करने के 4 तरीके हैं: इन्ना, हरफे ताकीद, लामे ताकीद, वाव कस्मिया। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी मिसाल है कि इन्नल इंसान फी रब्बिही लकनूद, बेशक यकीनन इंसान अपने रब का बेहद नाफरमान है। इसका तर्जुमा ये है। अच्छा, इसमें क्या क्या जो है जोर कैसे पैदा हुआ? इन्ना, इन्ना हरफ ताकीद है। अल इंसान इन्ना की वजह से मंसूब हो गया। ठीक है, ये अल
इंसानु था, ठीक है। अगर इन्ना को हटा दें तो फिर हम करेंगे अल इंसानु लिरब्बिही लकनूद। जब इन्ना लगा तो इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, ठीक है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। तो इस आयत में इन्ना हरफे ताकीद, लाम ने ताकीद और हरफे जर, दो लाम इसमें इस्तेमाल हुए हैं, लाम ताकीद और हरफे जर। हरफ जार, ये लाम जो पहला लाम है ये हरफ जार है, और इसकी वजह से जो रब्बी है वो मजरूर है, ठीक है। रब्बी ही भी मजरूर है। दूसरी मिसाल जो है उसमें है कि इन्नहु अला सालिका लशदी लशाहिद, सॉरी, इन्नहु अला सालिका लशाहिदुन। तो इसमें आपको जो है जमायर जो है इसको रिवाइज करना है कि मरफू जमायर कौन सी होती है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, ठीक है। ये तो हमारी मरफूज जमायर है, इसको एक दफा हमने रिवाइज कर लिया। और जो नसब जार की होती है वो होती है हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना, ठीक है। तो जब इन्ना के साथ, इन्ना जो आता है ना जमायर के साथ, तो वो ये वाली नसब और जर की जमायर के साथ आते हैं, ठीक है। जब इन्ना जमायर के साथ आएगा तो उसके साथ जो अटैच होती है ना, क्या कहते हैं, मुत्तसिल, ठीक है ना। मुत्तसिल जमायर कौन सी होती है, नसब और जर की होती है, ठीक है। तो वो वाली उसके साथ इन्ना आएगा। किस तरह से आएगा, इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, इन्नहा, इन्नहुमा, इन्नहुन्ना, इन्नका, इन्नकुमा, इन्नकुम, इन्नकी, इन्नकुमा, इन्नकुन्ना, इन्ननी, इन्नना, ठीक है। इन्ना यानी आप, अच्छा इसको मैं लिख के दिखाती हूँ कि किस तरह से वो इन्ना यानी इन्ना बेशक मैं, यानी अपने लिए इन्ना, इन्नना, ठीक है। तो ये था, ये दोनों लेसन एक दूसरे एक ही यानी उस टॉपिक पे थे, तो इसलिए ना इसको मैंने कहा कि चलो इकट्ठा ही हम इसको कर लेते हैं इस लेसन को। और अब हम जरा लिख कर उसकी थोड़ी सी आपको मैं एक्सरसाइज वो करवा देती हूँ, ताकि अगर कोई उसमें हो तो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं बोर्ड खोलती हूँ। सबसे हम पहले हमने किया कि किस तरह से हम जब इन्ना दाखिल होता है तो कैसे क्या तब्दीली आती है, ठीक है। वो अब हम लिख कर लेते हैं। जैसे जुमला था हमारे पास ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैदुन सालिहुन, ठीक है। तो अब हमने इन्ना दाखिल कर, इन्ना, इन्ना ने क्या करना है, इन्ना का असर ज़ैद पर पड़ेगा। इसकी जो ये मरफू हालत है ना, इसको उसने नस्बी हालत में कर देना। इन्ना ज़ैदन सालिह, ठीक है। इस इन्ना की वजह से ये जो मुब्तदा था, ये मुब्तदा था ना, ये मुब्तदा और ये खबर था, ठीक है। अब ये मुब्तदा जो है ना, ये मुब्तदा नहीं रहा, अब ये बन गया है
इस्मु इन्ना, ठीक है। इस्मु इन्ना बन गया है, और ये जो खबर थी ये बन गई है खबरू इन्ना, ठीक है जी। ये अच्छा, इन्ना दाखिल करेंगे तो इस तरह से होगा। और दूसरा जो तरीका है जो कि कुरान में कम इस्तेमाल हुआ है, ये अरबी की किताबों में मिलेगा आपको ज्यादा मिसालें इसकी, कि जो लाम जो है, लाम मफ्तूहा जोर देने के लिए शुरू में दाखिल कर देते हैं, इसी जुमले में हम करते हैं उसमें लाम मफ्तूहा, ये वाला लाम, ला ज़ैदुन सालिहुन, ठीक है। इसमें जब ये लाम इसमें दाखिल करते हैं तो एराबी तब्दीली नहीं आती। बस ये याद रखना आपने, इन्ना दाखिल करेंगे तो जो इसम होगा, जो मुब्तदा होगा, उसका राब चेंज होगा, मंसूब हो जाएगा। लेकिन अगर लाम दाखिल करेंगे जोर पैदा करने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए, तो उसका राब चेंज नहीं होगा मुब्तदा में, ठीक है। मुब्तदा मुब्तदा ही रहेगा और खबर खबर ही रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन जब इन्ना दाखिल करेंगे तो मुब्तदा मुब्तदा नहीं रहेगा, इसमें इन्ना बन जाएगा, और खबर जो है खबरू इन्ना बन जाएगी, ठीक है। ये समझ आ गया आपको? दूसरी हम एक मिसाल कर लेते हैं, ये तो थी उसकी वाहिद की, तो हम जरा उसकी मुसन्ना की भी कर लेते हैं, ताकि एराब का जो चेंज होना है थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, इसको मैं थोड़ा रब कर लूं तो दूसरा जुमला लिखती हूँ। कोशिश करें कि आप होमवर्क साथ साथ कर लिया करें, फिर जमा हो जाएंगे तो फिर करने मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी। दोनों लड़कियां नेक हैं, सालिहा सालिहा, ठीक है। अब ये बिनतानी जो है, ये दो लड़कियों को बिनतानी कहते हैं ना। एक लड़की को कहेंगे अल बिंतु, البنت अल बिंतु सालिहा, صال हाँ, صالحات ठीक है। जी तो जब हम इन्ना दाखिल करेंगे तो ये जो है बिंतु, अल बिंतु है, वो बन जाएगी, البنت क्या बनेगी? नसब बनेगा ना अल बिंता, ठीक है। नशा बनेगा ना, अल बिंता, अल- हाँ, अल बिंता बन जाएगी, ठीक है। तो सालिहातुन सालिहातुन ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, यानी खबर नहीं चेंज होगा, सही है। तो अब ये जो अल बिंतानी है, बिंतान, ठीक है। अब इसको हमने मंसूब करना है। जब इन्ना दाखिल हुआ, इन्नल, अच्छा, बिनतानी की ये तो उसकी रफ़ई हालत है ना, तो इसकी नस्बी हालत क्या होनी है? बिन, क्या होगी? बिनतेन बिन बिनते तई, बिनतेनी तई, ठीक हो गया, बिन तई। जी तो सालिहा तानी वैसे ही रहेगा, सही है। अब इसकी हम करते हैं, ये तो थे, ये वाहिद था, वाहिद, और ये था मुसन्ना, ठीक है। अब हम करते हैं जमा का, अल बिनातु, ठीक है। अल अलबिना बिनातु, अल बिनातु से पहले जब हमने इन्ना दाखिल किया, इन्ना दाखिल किया जब, तो इन्ना, इन्नल, अच्छा, बिनातु
اس کی جو ہے ہماری رفعی حالت کیا آئے گی؟ بناتی، انل بناتی صالحات، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بناتو صالحہ جو ہے یہ جمع ہے نا بنات کی، بنتو کی جمع ہے بناتن، تو پھر ہم اس کی جو خبر ہے وہ بھی تو جمع لے کے آئیں گے نا، صالحات، ٹھیک ہو گیا؟ یہ واحد خبر تھی، یہ مثنیٰ خبر، اور یہ جمع خبر، ٹھیک ہو گیا؟ جی جی یہ مبتدا جمع اور خبر بھی اس کی جمع، یہ اس کی سمجھ آ گئی نا کہ کس طرح اس کے ہم نے اعراب چینج ہوگا تو کیسے کیا تبدیلی آئے گی، صحیح ہے؟ جی 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 تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، کوئی مشکل تو نہیں ہے، یہ بہت ہی آسان تھا، ٹھیک ہے ہاں نا، کوئی مشکل نہیں تھا۔ اگر کوئی مشکل ہوگا تو اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ گروپ میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، اگر کچھ نہ سمجھ آئے۔ جو میں نے لام بتایا کہ ہم نے 4 لام پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ حروف تہجی میں ایک لام پڑھا تھا ہم نے، پھر ہم نے لام تعریف پڑھا تھا جو نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر ایک لام ہم نے پڑھا تھا لام جر جو اسم کو مجرور کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو زبر کے ساتھ آتا ہے، اور اچھا جو لام تاکید ہے وہ زبر کے ساتھ ہی آتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے لام تاکید استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ صحیح اور انا جب جملے پر داخل ہوتا ہے تو وہ مبتدا کو نصبی حالت میں کر دیتا ہے، خبر جو ہے وہ مرفوع ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی انا مبتدا کو منصوب کرتا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اگر لام تاکید داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر تو اعراب میں تبدیلی نہیں آتی، ٹھیک ہے، جو ہمارا مبتدا ہے وہ مبتدا ہی رہتا ہے، مرفوع ہی رہتا ہے، اور جو خبر ہے وہ بھی مرفوع ہی رہتی ہے، لیکن جب انا داخل ہوتا ہے تو وہ اس جملے پہ نا قبضہ کر لیتا ہے، مبتدا کو اپنا مبتدا بنا لیتا ہے، یعنی اپنا اسم بنا لیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرا اسم، ٹھیک ہے، مبتدا نہیں رہتا، پھر وہ انا کا اسم بن جاتا، تو جو خبر ہے تو وہ انا کی خبر بن جاتی، یہ گرامر کا رول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا جو ہے آپ نے جو رول بتائے ہیں آپ نے یاد کرنے ہیں، اور کوشش کیجیے گا کہ لکھ بھی لیں تاکہ جو ہے پھر آپ کو کوئی مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو جی یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو دعا آسان کر، تھا جی بہت آسان تھا، بس تھوڑی سی سمجھ کی بات ہے، تھوڑا سا آپ نے پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، اور ویسے بھی وہ ماشاءاللہ اب آپ اتنا پڑھ چکے ذرا ہیں، میں آج لیو کر ہمارے، رہی ہوں شاہدہ آپا، سوری میں لیو کر جی رہی ہوں، ہاں بس میں ابھی دعا پڑھ رہی ہوں، دعا صحیح پڑھ رہی ہوں میں، ٹھیک چلے ہے، آپ پڑھے پھر لیو کرتی ہوں ہاں، میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، السلام جزاکم علیکم اللہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم برکات السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ بہت جزاک بہت اللہ خیرا کثیرا۔ آپ کا بھی جزائے